These jnanis engaged in the Karma Yoga are of three types. Those who have controlled their intelligence, Vishuddhatma. Those who have controlled their minds, Vijjitatma. And those who have controlled their senses, Jitendriya. The order of superiority is from last to first. Having control intelligence is the best. All jivas are attracted to such a grasta. His body Atma becomes the object of love Atma Bhuta. For all living entities Sarva Bhuta. तो इस प्रकार ये तीन शब्द जो है विशुद्धात्मा मीन्स कंट्रोल्ड इंटेलिजेंस, विजितात्मा इज कंट्रोल्ड माइंड एंड जितेंद्रिय इज कंट्रोल्ड सेंसेस। तो ये निष्काम कर्म योगी जो है जैसे बता रहे हैं कि टॉप मोस्ट इज द बेस्ट इज controlling the intelligence. So that is विशुद्धात्मा, so that is the best. तो धीरे धीरे वो ऊपर उठता है, so from जितेंद्रिय to विशुद्धात्मा and then विजितात्मा and then विशुद्धात्मा. So in that way he gradually makes progress. ठीक है? So and he is dear to everyone because he wants to help all the jivas, serve all the jivas. So therefore he is dear to everyone. अभी ऐसे निष्काम कर्मयोगी, what is his consciousness? तो अभी हमने देखा कि he is working in this world, correct? So he is using his senses, he is using his mind, he is working. But what is his consciousness when he is working? अगले दो श्लोक में बताते हैं। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियान् इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. Because while speaking, evacuating, receiving or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with the objects and that he is aloof from them. तो इस प्रकार अभी ये ज्ञानी को वो ज्ञान आ चुका है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। तो इसलिए हालांकि वो अपने शरीर या इंद्रियों से वो अलग अलग कार्य कर रहा है, लेकिन उनको पता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, केवल ये शरीर या इंद्रिय काम कर रहे हैं, मेरा कुछ लेना देना नहीं है उससे। So he has this realization now that I am separate from this body. So therefore he is, even though he is performing all these various activities, he knows that only material senses are engaged with the objects, he is aloof from them. Indriyani indriyartheshu. Prabhupada writes, a person in Krishna consciousness is pure in his existence and consequently has nothing to do with any work which depends upon five immediate and remote causes: the doer, the work, the situation, the endeavor and fortune. This is because he is engaged in loving transcendental service of Krishna. Although he appears to be acting with his body and senses, he is always conscious of his actual position, which is spiritual engagement. In material consciousness, the senses are engaged in sense gratification, but in Krishna consciousness, the senses are engaged in the satisfaction of Krishna's senses. ये भक्त के लिए है। तो इस प्रकार ये निष्काम कर्म योगी वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इस प्रकार कार्य करने से उसका परिणाम क्या होता है अगले श्लोक में बता रहे हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स्वापेन पद्मपत्रम् इवाम्बसा। One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful action as the lotus leaf is untouched by water. तो इस प्रकार ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ब्रह्मणि आधाय मतलब जो उनका कर्म है
वो कर्मफल को, परब्रह्म को त्याग देता है। ब्रह्मणि आदाय कर्माणि, तो सारे कर्मफल जो है वो परब्रह्म को अर्पित करता है। संगम त्यक्त्वा, नो अटैचमेंट, कर्मफल के प्रति आसक्ति नहीं है। तो इस प्रकार जब ये निष्काम कर्मयोगी कार्य करता है तो क्या होगा? लिप्यते न स पापेन, sin does not touch him, sinful reactions don't touch him, because he is not attached to the karma फल। तो क्योंकि जब कर्मफल से आसक्त नहीं होता है तो व्यक्ति अपने इंद्र तृप्ति के लिए कुछ पाप कार्य नहीं करेगा, वो तो अपना बेसिक मेंटेनेंस के लिए कुछ कार्य करेगा और अन्य जीवों की भलाई के लिए कार्य करेगा। तो इसलिए ये कुछ पाप कार्य नहीं करता है क्योंकि इंद्र तृप्ति की इच्छा तो है ही नहीं। So therefore he is not affected by sinful reactions, and the analogy is just like lotus leaf is untouched by water. तो ये प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है, इसको पढ़ें। When Krishna will ask me or allow me to go, Krishna says, Naive kinchit karomiti yukta manyate tattvavit. I am not doing anything. This is the stage. That is the stage. A Krishna conscious person never thinks that I am doing something. Even you ask him that, are you going to such and such place? He will say that I do not know when I shall go, but when Krishna will ask me or allow me to go, I shall go. I am saying this from my practical experience from my Guru Maharaj, from my spiritual master. He would never say, I am going, I am doing. No, if Krishna desires, then I shall do it. If Krishna desires, then I shall go. So in this way, this is of course a devotee. A devotee, he understands that unless Krishna sanctions, he cannot do it. Okay, so this is the example of the lotus. So even while remaining in the material world, performing different activities, he remains untouched. लेकिन ये सिद्धांत जो है ये भक्तों के लिए भी लागू होता है, क्योंकि भक्त लोग भी इस भौतिक जगत में रहते हुए कितने सारे कार्य करते हैं प्रचार के लिए इत्यादि। तो लेकिन उनको कैसे रहना चाहिए? unaffected by the material atmosphere, the material work, just like the lotus. ठीक है, तो इस प्रकार ओके नेक्स्ट 11 कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। The yogis abandoning attachment act with body, mind, intelligence and even with the senses only for the purpose of purification. तो अभी ये निष्काम कर्म योगी कायेन मनसा बुद्धिया सबको उपयोग कर रहा है, केवलैर इंद्रिये api. So even the senses is engaging. That is why api. Even the purified senses. तो सबको engage कर रहा है. Senses, mind, intelligence, everything is engaging. Yogina karma kurvanti, is performing karma. लेकिन क्यों कर रहा है कर्म? संगम त्यक्त्वात्मा शुद्धये। वो अपना कर्म कर रहा है लेकिन कर्मफल से अनासक्त है। तो अगर कोई प्रश्न पूछता है, अगर कर्मफल से अनासक्त है, कर्मफल की इच्छा ही नहीं, तो कर्म क्यों कर रहा है फिर? उसका कारण क्या है? शुद्ध ये। तो ये सत्वगुण का लक्षण है। आगे 17वां 18वां अध्याय में भगवान बताएंगे कि जो व्यक्ति सत्वगुण में होता है तो फिर वो कार्य क्यों करता है? अपने शुद्धिकरण के लिए, शुद्धिकरण के लिए, और ऑफ कोर्स जो भक्त हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। ये सत्वगुण का लक्षण है। कर्तव्य के रूप में वो कार्य करता है शुद्धिकरण के लिए। ये सत्वगुण का लक्षण है। जो रजोगुण में होता है क्या लक्षण है? हाँ, वो कर्मफल से आसक्त रहता है जो रजोगुण में होता है।
तो जो सत्वगुण में होता है वो कर्मफल से अनासक्त रहता है और केवल शुद्धिकरण के लिए वो कर्म करता है। तो हमें भी बहुत जरूरत है सत्वगुण पर आने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम कौन से स्तर पर आना चाहते हैं? शुद्ध सत्व। लेकिन शुद्ध सत्व के स्तर पर आने के लिए कम से कम सत्वगुण पर आना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है हमें कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वी डू इट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। अच्छा लगे या न लगे, दैट इज ड्यूटी। कभी अच्छा लगे कभी नहीं, लेकिन फिर भी करना है, क्योंकि उसे क्या होगा? शुद्धिकरण। तो वही तपस्या है। तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वं शुद्धयेत् यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। तो वही तपस्या है, एक कर्तव्य के रूप में कार्य करना, अच्छा लगे या ना लगे, वो तपस्या है। कभी चैंटिंग अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं, करना चाहिए। उसी प्रकार क्लास हो या सेवा हो, जो भी हो, क्योंकि अभी हम स्थिर नहीं है, निष्ठा के स्तर पर नहीं है, तो इसलिए क्योंकि हम मानसिक स्तर पर होते हैं, तो फिर कभी मन को अच्छा लगता है, कभी मन को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी जो सत्वगुण पर रहता है या एटलीस्ट सत्वगुण पर आने का प्रयास कर रहा है, सो देन ही कंटिन्यूज हिज ड्यूटी इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, तो फिर और शुद्धिकरण होगा। तो ये निष्काम कर्मयोग के लक्षण। हाँ जी, इसको मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि सत्वगुण ही एक्ट कर रहे हैं निष्काम कर्मयोगी के लिए। हाँ, वो सद्गुण के स्तर पर ही एक्ट कर रहे हैं, वो बात सही है। मतलब गुणों के अंदर ही है, सत्वगुण की प्रधानता है, तो सत्वगुण उसको ऐसा एक्ट करने पे मजबूर कर रहे हैं, ऐसा कुछ। ऑफ कोर्स अल्टीमेटली सब गुणों के अधीन ही होता है, वो बात सही है। लेकिन उनका भी प्रयास है ना उसमें, वो भी सत्वगुण में रहने के लिए वो प्रयास कर रहा है। तो क्योंकि वो प्रयास कर रहा है तो इसलिए सत्वगुण एक्ट करता है, और जब सत्वगुण एक्ट करता है तो फिर वो इस प्रकार वो बिहेव करता है। ठीक है ना? तो वो बात सही है कि तीन गुण जो है वो जीवों को, वो आगे हम चर्चा करेंगे, तो वो पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, लेकिन व्यक्ति की इच्छा भी जरूरी है। इच्छा के अनुसार भी सब कुछ होता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इज गिविंग द डेफिनेशन ऑफ जीवन मुक्त। ये ऑफ कोर्स भक्त के लिए है। यहाँ यस्य हरे दास्य कर्म नाम सागिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त उच्यते। A person acting in Krishna consciousness, or in other words, in the service of Krishna, with his body, mind, intelligence, and words, is a liberated person, even within the material world, although he may be engaged in many so-called material activities. He has no false ego, for he does not believe that he is this material body, or that he possesses the body. He knows that he is not this body, and that this body does not belong to him. He himself belongs to Krishna, body too belongs to Krishna. When he applies everything produced from the body, mind, intelligence, words, life, wealth, etc., whatever he may have within his possession to Krishna's service, is at once dovetailed with Krishna. और अभी 12th वर्स में भगवान ये डिफरेंसेस बता रहे हैं। जो व्यक्ति कर्मफल से आसक्त है और जो अनासक्त है, इन दोनों में क्या अंतर है इसमें बता रहे हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्त, जो युक्त, युक्त मतलब जो योग में लगा हुआ है। कौन सा योग? निष्काम कर्म योग। तो इसलिए कर्म फलम त्यक्त्वा, वो निष्काम कर्म योग कर रहा है और कर्म फल से अनासक्त है पूरी तरह से। तो उसका परिणाम क्या होगा? शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम्। क्योंकि इंद्रिय की इच्छा नहीं है, भौतिक इच्छाएं नहीं है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली शांति। तो हम सब जानते हैं कि अगर हमें भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक चीज प्राप्त करने की इच्छा है, तो फिर क्या होता है? शांत नहीं रह सकता ना व्यक्ति, हमेशा तृष्णा,
ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो शांति से नहीं रह सकता, शांति से जप नहीं कर सकता है। हाँ, अगर भौतिक इच्छाएं हैं, जप के समय क्या चलेगा? वही बार बार इच्छाएं सताएं। So, if one is detached from the karma phal, then shanti. Then ayukta, yukta, ayukta. तो अयुक्त का मतलब क्या है? जो कर्म फल से आसक्त है, काम कारेण, वो कार्य कर रहा है किसके लिए? काम, अपने इंद्र तृप्ति के लिए, कर्म फल को प्राप्त करने के लिए। अयुक्त काम कारेण फले सक्तो, फल से आसक्त हैं, तो परिणाम क्या होगा? निबध्यते, फिर वो बंधन के कारण बनेगा। तो ये सिद्धांत है, सिद्धांत को हमेशा याद रखना चाहिए। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या? अगर हम कर्म फल से आसक्त रहेंगे तो बंधन का कारण बनेगा। कर्म फल से आसक्ति बंधन का कारण, ये सिद्धांत है, सभी लोगों के लिए लागू होता है, ये भक्तों के लिए भी लागू होता है। जितना हम कर्म फल से आसक्त रहेंगे उतना बंधन का कारण बनेगा। So therefore Prabhupada is writing, okay, the translation. Steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the result of all activities to me. Whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor, becomes entangled. Purport: the difference between a person in Krishna consciousness, person in bodily consciousness, is that former is attached to Krishna, whereas the latter is attached to the results of his activities. The person who is attached to Krishna and works for him only is certainly a liberated person and has no anxiety over the results of his work. In the Bhagavatam, the cause of anxiety or the result of an activity is explained as being one's functioning in the concept of duality. तो अगर कोई शारीरिक चेतना में है तो फिर वो ऑटोमेटिकली कर्मफल से आसक्त रहेगा। और अंत में प्रभुपाद लिखते हैं, one is therefore filled with peace in Krishna consciousness, but one who is entangled in profit calculation for sense gratification cannot have that peace. This is the secret of Krishna consciousness. Realization that there is no existence besides Krishna is the platform of peace and fearlessness. तो ये सब निष्काम कर्म योगी के कुछ लक्षण हैं, या वो किस चेतना से कार्य करता है। तो अभी जैसे ये निष्काम कर्मयोगी आगे बढ़ता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो उनके क्या क्या रियलाइजेशंस है यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। ऐसे ज्ञानी के क्या क्या रिलेशनशिप, रियलाइजेशंस है, साक्षात्कार, वो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। सो ही अंडरस्टैंड्स द रिलेशनशिप बिटवीन ईश्वर, जीव एंड प्रकृति। तो ये महत्वपूर्ण सेक्शन है 30 to 16, ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। 13 सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। When the embodied living being controls his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of 9 gates, the material body, neither working nor causing work to be done. तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते। तो अगर कोई मन और इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए वो अपना कर्म करता है, क्योंकि वो कर्मफल से अनासक्त है, निष्काम कर्म में। तो क्योंकि कर्मफल से अनासक्त है तो इसलिए उनके जो मन है, इंद्रिय है, सब कंट्रोल, संन्यस्यास्ते, कंट्रोल्स हिज नेचर एंड मेंटली रिनाउंसेस ऑल एक्शंस। तो फिर सुखम वशी, तो जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने बताया शांति में आपनोति, तो उसी प्रकार यहाँ सुखम, तो ही इज हैप्पी बिकॉज ही हैज नो मटेरियल डिजायर्स। नवद्वारे पुरे देही, तो ये देह और देही, देह ये शरीर, तो इस शरीर में कितने द्वार हैं? 9 द्वार। नवद्वारे पुरे, पुरे, पूरा, पूरा का मतलब क्या है? सिटी। तो श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद में आते हैं पुरंजन, पुरंजन। So the body is compared to a city. तो ये 9 द्वारे पुरे,
और उसमें कौन रहता है? देही। देही मतलब आत्मा। तो यहाँ पर आगे कहते हैं नैव कुर्वन् न कारयन्। वो जो आत्मा जो है, जो इस नवद्वार पुरी में रहता है, तो वो आत्मा न कुछ करता है न करवाता है। आत्मा कुछ नहीं, आत्मा तो सिर्फ रहता है, इस देह में सिर्फ रहता है। आत्मा कुछ नहीं करता, न कुछ करता है न करवाता है। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान बता रहे कि आत्मा तो कुछ नहीं करता है। तो अभी कोई प्रश्न पूछ सकते, फिर कौन करता है? तो व्यक्ति तो बहुत सारे कार्य करता रहता है ना, तो अगर आत्मा कुछ नहीं कर सकती तो फिर कौन करता है? तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, क्या है वो? न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। The embodied spirit, master of the city of his body, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of actions. All this is enacted by the modes of material nature. तो जो आत्मा जो है वो न तो कार्य करता है, न कर्तृत्वम, he does not have proprietorship कि मैं करता हूँ, तो वो भी नहीं है, वो कर्म भी नहीं करता है। न कर्माणि, और न कर्मफल संयोगम, वो कर्मफल का कारण भी नहीं है। तो आत्मा जो है न तो वो कार्य करता है, न वो कार्य करवाता है, न वो कर्मफल का कारण है। आत्मा कुछ नहीं। ठीक, कौन करता है फिर? स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव का मतलब क्या है? मटीरियल नेचर। तो सबका कारण क्या है? प्रकृति। तो तीसरे अध्याय में भगवान बताया ना, क्या बताया? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। तो सब कुछ प्रकृति करती है, लेकिन वास्तव में प्रकृति क्या है? प्रकृति जड़ है। प्रकृति जड़ है ना, प्रकृति जड़ है। तो फिर प्रकृति कैसे कर सकती? जीव के संपर्क में आने का। प्रकृति को कंट्रोल करने वाला कौन है? ईश्वर। हाँ, ईश्वर। तो इसलिए अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं येन मुह्यन्ति जन्तवः। तो अभी तो अल्टीमेटली कोई कह सकता है अल्टीमेटली सब भगवान ही करवा रहे, क्योंकि जीव कुछ नहीं करता। ठीक है, सब कुछ प्रकृति कर, लेकिन प्रकृति भी स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति को कौन कंट्रोल करता है? भगवान। तो इसका मतलब क्या है? सब कुछ भगवान करते हैं। सही बात है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई पाप कार्य करता है, उसकी जिम्मेदारी कौन? भगवान। अच्छा फिलॉसफी है ना, तो वही फिलॉसफी हो गया ना। तो अल्टीमेटली सब कुछ भगवान करवा रहे हैं, तो इसलिए जो पाप कार्य व्यक्ति करता है उसका कारण भी भगवान है। तो जीव का कुछ दोष नहीं है ना, क्योंकि जीव तो कुछ नहीं कर। तो अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर किया, जेल में किसको जाना चाहिए? भगवान। लेकिन व्यक्ति जाता है जेल में, भगवान तो आते ही। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं नहीं, मैं जीव का पाप और पुण्य का कारण मैं नहीं हूं। न आदत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुखम सुकृतम। तो यहाँ पर भगवान कह रहे मैं जिम्मेदार नहीं, ये जीवों का जो पाप और पुण्य है उसका जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं। ठीक है, अभी किसी को तो जिम्मेदार लेना पड़ेगा ना।
किसको तो लेना पड़ेगा। तो भगवान क्या कहते हैं, कौन जिम्मेदार है? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। जंतव का मतलब क्या है? जीव। तो जो जीव जो जिसका ज्ञान आवृत हुआ है, किसे? अज्ञानता से, वो जीव ही जिम्मेदार है। तो अज्ञानता में जो जीव है वो जीव ही जिम्मेदार है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं, तो इस तात्पर्य को पढ़िए। दिस इज एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये सिद्धांत का कि हु इज द डूअर। The Sanskrit word Vibhu means the Supreme Lord, who is full of unlimited knowledge, riches, strength, fame, beauty, and renunciation. He is always satisfied in himself, undisturbed by sinful or pious activities. He does not create a particular situation for any living entity, but the living entity, bewildered by ignorance, desired to be put into certain condition of life, and thereby his chain of action and reactions begin. A living entity is by superior nature full of knowledge. Nevertheless, he is prone to be influenced by ignorance due to his limited power. The Lord is omnipotent, but the living entity is not. The Lord is Vibhu or omniscient, but the living entity is Anu or atomic. Because he is a living soul, he has the capacity to desire by his free will. तो ये important point है, because he is a living soul, he has the capacity to desire by his free will. Such desire is fulfilled only by omnipotent Lord. And so, when the living entity is bewildered in his desire, the Lord allows him to fulfill those desires. But the Lord is never responsible for the action and reactions of the particular situation which may be desired. But in the being in a bewildered condition, therefore, the embodied soul identifies himself with the circumstantial material body and becomes subjected to the temporary misery and happiness of life. The Lord is the constant companion of the living entity as Paramatma or Super Soul, and therefore he can understand the desires of the individual soul. As one can smell the flavor of a flower by being near it, desire is a subtle form of conditioning of the living entity. The Lord fulfills his desire as he deserves. Man proposes and God disposes. The individual is not, therefore, omnipotent in fulfilling his desire. The Lord, however, can fulfill all desires, and the Lord, being neutral to everyone, does not interfere with the desire of the minute independent living entities. However, when one desires Krishna, the Lord takes special care and encourages one to desire in such a way that one can attain to him and be eternally happy. The Vedic hymns therefore declare, Esha yu ही एवा साधु कर्म कार्यति तम एव एभ्यो लोकेभ्य उन्निश्यते। ऐसा यु एवा साधु कर्म कार्यति यम अधो निनिश्यते। The Lord engages the living entity in pious activities so that he may be elevated. The Lord engages him in impious activities so that they may go to hell. अज्ञोर्जंतुर अनीसो अयम आत्मना सुख दुखयो ईश्वरा प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वासव अभिरम एवच. The living entity is completely dependent in his distress and happiness. By the will of Supreme, he can go to heaven or hell, as cloud is driven by the air. Therefore, the embodied soul, by his immemorial desire to avoid Krishna consciousness, cause his bewilderment. Consequently, although he is consequently eternal, blissful, and cognizant, due to littleness of his existence, he forgets his constitutional position of the service to the Lord, and is thus entrapped by the nescience. And under the spell of ignorance, the living entity claims that the Lord is responsible for his conditional existence.
The Vedanta Sutra 2.1.34 also confirm वैषम्य नैर्गण्य न सापेक्षवाद तथा ही दर्श्यते. The Lord neither hates or likes anyone, though he appears to. ठीक है? So very clearly Srila Prabhupada has explained. तो मूल कारण कौन है? जीव. जीव एक ही चीज कर सकते. क्या है वो? इच्छा. तो जब जीव इच्छा करता है तो फिर ईश्वर उस इच्छा को जानते हैं. क्या उदाहरण दिया? हाँ. तो जिस प्रकार किसी फूल को अगर हम पास में लाएंगे तो उसका स्मेल आता है, तो उसी प्रकार हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जीव और परमात्मा दोनों क्या एनालॉजी है? एक ही पेड़ पर दो पक्षी. तो दोनों पास में हैं, तो इसलिए परमात्मा जीव की इच्छाओं को जानते हैं. लेकिन जो जीवात्मा है वो स्वतंत्र नहीं है उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, बिकॉज ही इज अनु. ही इज अनु. ही कैनॉट फुलफिल हिज डिजायर्स ऑन हिज ओन. तो वो केवल इच्छा कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है. लेकिन परमात्मा जानते हैं उन इच्छाओं को. और फिर परमात्मा तो क्या है? विभु है. सो द लॉर्ड इज ऑमनिशेंट एंड ऑमनीपोटेंट. ऑमनिशेंट मतलब सब कुछ जानते हैं, तो सभी जीवाओं की इच्छा को भगवान जानते हैं और भगवान को वो शक्ति भी है उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए. तो इसलिए भगवान जीवों की इच्छा पूर्ति करते हैं प्रकृति के माध्यम से. तो प्रभुपाद जी अक्सर कितने सारे उदाहरण देते हैं. हाँ, जैसे कि अगर किसी को खून और मांस खाना है तो शेर बना देंगे. हाँ, तो फिर अगले जन्म में प्रकृति उसको शेर का शरीर दे. या किसी को पानी में रहना है तो मछली. हाँ, तो इस प्रकार इच्छा के अनुसार तो भगवान वो इच्छा जानते हैं और फिर प्रकृति के माध्यम से उन इच्छाओं को पूर्ति करते हैं. तो ये संबंध है ये तीनों का. तो यहाँ पर भगवान ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये सब साक्षात्कार ये ज्ञानी को हो जाता है. तो वो ज्ञानी जान जाता है कि वास्तव में मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ और मैं पूरी तरह से परम सत्य पर निर्भर हूँ मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए. और जो परम भगवान है, परम सत्य है, वो पूरी तरह से इम्पार्शियल है. जैसे जीव इच्छा करता है वैसे पूर्ति करता है. इट्स टोटली इम्पार्शियल. तो ये सब ज्ञान वो ज्ञानी को प्राप्त होता है. तो इसलिए भगवान ये सब यहाँ पर बता रहे हैं. These are the realizations of the ज्ञानी. तो इसलिए हमारे लिए भी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? क्या है? इच्छा. एक भक्त ने एक बार एक मॉर्निंग वॉक पर श्रील प्रभुपाद जी को पूछा ये प्रश्न. प्रभुपाद जी से पूछा, कृपा करके ये बताइए कि भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? और प्रभुपाद जी ने एक ही शब्द बताया. क्या है वो? इच्छा, डिजायर. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने एक परपोर्ट्स में लिखते हैं 1:17 भागवतम में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि most jivas are not even eager to go back to God. तो बहुत सारे जीव तो भगवतम जाना भी नहीं चाहते हैं, वो इच्छा भी नहीं है जाने. तो इसलिए हमारी जो इच्छा है, इच्छा तीव्र होनी चाहिए.
अगर इच्छा तीव्र है तो वही पॉइंट प्रभा जी बार बार कहते हैं ना कि अगर हम सिंसियर और सीरियस हैं, मतलब एक तीव्र इच्छा है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए, अगर तीव्र इच्छा है तो फिर भगवान मदद करेंगे वो इच्छा पूर्ति करने के लिए। लेकिन अगर हम इच्छा करेंगे इंद्र तृप्ति करने के लिए तो फिर भगवान वही इच्छा पूर्ति करेंगे। तो सब इच्छा के ऊपर निर्भर है, हमारी इच्छा के ऊपर। तो हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ही भगवान ने ये सारा भौतिक जगत की सृष्टि की, उसी के लिए, क्योंकि हमने इच्छा की, इसलिए भगवान ने ये सब तैयार किए। ऐसा नहीं कि भगवान चाहते हैं कि हम इस भौतिक जगत में रहे और ये क्लेशों का अनुभव करें, नहीं, भगवान नहीं चाहते, लेकिन हमने इच्छा की। कृष्ण बुलिया जीव भोग वांछा करे, किसने वांछा किया? जीव ने। तो फिर माया ने पकड़ ली। तो ये इच्छा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जब हम भक्ति में आते हैं, इन इच्छाओं को बदलना है। अभी ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को छोड़कर कौन सी इच्छाओं को विकसित करना है? कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा, ये इच्छाओं को बदलना है। तो अगर हम इच्छा करेंगे भगवान के पास जाने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, फिर भगवान मदद करेगा। इच्छा ही नहीं है तो भगवान क्या कर सकते? तो ये ऑलरेडी भगवान ने बताया, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, वो सिद्धांत है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते। तो अगर किसी को असुरी बनकर रहना है तो भगवान के लिए ठीक है, कोई बात, क्योंकि भगवान जीव की इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? ठीक, कोई प्रश्न कर सकता है ना कि ठीक है, अगर जीव एक सही इच्छा करता है तो ठीक, लेकिन अगर जीव एक गलत इच्छा करता है, चोरी करने की, तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो भगवान इच्छाओं को भी बदल सकते हैं। क्षमता है कि नहीं? भगवान कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं करते? इंडिपेंडेंट खत्म हो जाएगी। देखिए, अगर वो जीव इंडिपेंडेंस का मिसयूज कर रहा है गलत तरीके से, तो फिर उसमें इंटरफेयर करना चाहिए ना भगवान। इच्छा बनी रहेगी ना पूरी। क्या इच्छा? जीव इच्छा कर रहा है, अगर भगवान करने से मना कर रहे हैं, लेकिन फिर जीव की इच्छा तो भी बनी रहेगी ना पूरी, फोर्सली अगर नहीं, ठीक है, तो जब भी जीव गलत इच्छा करता है तो फिर भगवान उसको चेंज कर सकते हैं ना। भगवान किसी भी फ्री विल में मुझे वो नहीं करता है। फ्री विल में भगवान, तो वही हमारा प्रश्न है, क्यों नहीं करते? मुझे वो मतलब प्योर लव नहीं होगा, वो मतलब फोर्स होगा। हाँ, तो तो अल्टीमेटली भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि जीव उनसे प्रेम करे, क्योंकि वो हमारा अंतिम लक्ष्य है। लेकिन वो प्रेम जो है जबरदस्ती नहीं हो सकता है। हो सकता है जबरदस्ती? स्वेच्छा से व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता है ना, जबरदस्ती नहीं होता। तो इसलिए अगर भगवान फ्री विल में इंटरफियर करेंगे तो फिर वो तो जबरदस्ती हो जाएगा। तो फिर वो अपने फ्री विल को सही तरीके से यूज करके भगवान को प्रेम कैसे कर सकते? तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम समझे कि भगवान से क्यों प्रेम करना है, फिर सोच समझकर फिर अपने फ्री विल को सही तरीके से यूज करके भगवान से प्रेम करे और इस प्रकार जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करें। तो इसलिए भगवान लेकिन फिर भी भगवान गाइडेंस देते हैं। प्रभा जी अपने लेक्चर में कहते हैं, शायद वो हमने कोट किया है यहाँ, हाँ,
That is not Krishna's responsibility. Your responsibility, just like a thief, he is praying to God, my dear Lord, giving me some opportunity, I can steal that thing. Krishna first of all says, no, no, don't do it. But he insists. Then Krishna says, all right, do it. But as soon as you do it, you become entangled. Why you are doing against the will of Krishna? That is your entanglement. Krishna says, don't do this. Why you are doing that? So Krishna is giving you facility to steal others' property, but you become entangled. That is not Krishna's responsibility. Your responsibility. हाँ, तो भगवान तो सलाह देते हैं चोरी मत करो, ये अच्छा नहीं है, लेकिन व्यक्ति क्या कहता, नहीं मुझे करना ही है। तो फिर भगवान क्या, तो भगवान ठीक है, बट एट योर रिस्क, जो परिणाम है तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो यहां पर भी हम वही देखते हैं ना कि सरकार कहती है चोरी मत करो, लेकिन फिर भी व्यक्ति करना चाहता है, तो फिर जब वो करता है तो फिर दंड भुगतना पड़ेगा। सो सेम प्रिंसिपल। तो फ्री विल में कोई इंटरफियर नहीं कर सकता, तो भगवान भी इंटरफियर नहीं करते। तो इसलिए अगर मेरी भक्ति में अगर मैं तीव्र नहीं हूं, कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कुछ नहीं करेगा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कुआं में गिरा है, फिर दूसरा व्यक्ति देखता है बेचारा गिरा हुआ है, तो रस्सी फेंकता है, ठीक है रस्सी पकड़ो, मैं ऊपर खींच, तो वो कुआं में व्यक्ति कहता है नहीं मैं नहीं पकड़ सकता, कैसे तो भी खींच लो। क्या करेगा दूसरा व्यक्ति? कुछ नहीं कर। तो प्रभुपाद जी वो उदाहरण देते हैं और कहते हैं, if you do not follow my instructions, even I cannot save you. तो यहाँ पर जो कुआं में गिरा हुआ व्यक्ति वो कौन है? बद्धजीव। हाँ बद्धजीव। रस्सी क्या है? गुरु के आदेश, प्रोसेस, गुरु के आदेश। पालन किसको करना है? तभी गुरु मदद कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि बस मेरे गुरु महाभागवत है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सोते रहूंगा, सब हो जाएगा। हाँ, तो इंग्लिश में कहते हैं ना, यू कैन टेक अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैनॉट मेक हिम ड्रिंक। घोड़े को पानी तक लेकर जा सकते, लेकिन वो पानी कौन पिएगा? जबरदस्ती हो सकता है? संभव नहीं। तो उसी प्रकार जो हमारी इच्छा जो है वो तीव्र होना चाहिए और फिर वो इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो अगर मैं भक्ति में तीव्र नहीं हूं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी लोग सलाह दे सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं, लेकिन और क्या करेंगे? मेरे लिए कोई और जप कर सकता है? ध्यान पूर्वक जप किसको करना होगा? मुझे ही करना होगा। जब मैं क्लास में बैठता हूं ध्यान पूर्वक, किसको श्रवण करना है? सेवा सही चेतना में करना किसको करना है? लेकिन जब भक्ति में कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर तुरंत हम किसको दोष देते हैं?
तुरंत हम दूसरे को दोष देते हैं, अरे ये उस भक्त के वजह से, इनके वजह से, उनके वजह से, या अल्टीमेटली हम कहें भगवान की वजह से। खुद जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन अल्टीमेटली जो भी होता है जिम्मेदार कौन है? जीव ही है। जिम्मेदारी लेना चाहिए, मेरे वजह से हो रहा है, मेरे कर्मों के अनुसार। इसलिए सही इच्छा करना, उस इच्छा के अनुसार कार्य करना, ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अगर मेरी इच्छा नहीं है तो कौन क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। तो हम वही देखते हैं। तो अगर कोई भक्त सीरियस नहीं है भक्ति में, ठीक है, कुछ सीनियर ड्यूटीज उनको कुछ सलाह देंगे, कुछ समय के लिए देंगे, बाद में क्या करें? छोड़ो, क्या कर सकते? ठीक है, जो करना है करो, वही होता है। ठीक है, तो ये सब जो तत्व है ये ज्ञानी समझ जाता है कि कैसे परम सत्य है। परम सत्य वो इस प्रकार स्वतंत्रता देते हैं, वो इम्पार्शियल है। तो ये सब तत्व ज्ञान को समझ, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। जीव, ईश्वर, प्रकृति तीनों के बीच में क्या संबंध है, ये समझना अत्यंत आवश्यक है। बहुत इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो ये सब तत्वों को जानते हैं। हाँ, तो बड़े बड़े फिलोसफर्स होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वो ये सब समझ नहीं पाते हैं। तो ये भगवान और स्पेशली श्रील प्रभुपाद आचार्यों की कृपा है कि उन्होंने ये सब फिलॉसफी को इतना सरलता से प्रस्तुत किया है। नहीं तो लोग समझ नहीं पाते। लोग सोचते हैं ठीक है भगवान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं दुनिया में कितना सारा गड़बड़ हो रहा है, कितने सारे युद्ध हो रहे हैं, कितने मासूम लोग मारे जा रहे हैं। तो एक बार किसी ने ऐसा ही प्रश्न इन्होंने जयदत्त महाराज से पूछा। तो महाराज ने कहा हु इज इनोसेंट? मासूम कौन है? अगर मासूम है तो फिर इस भौतिक जगत में क्यों है? क्यों? तो लेकिन लोगों का ऐसे प्रश्न रहता है। तो वो तो निर्दोष है, लेकिन फिर भी युद्ध में मर गया। तो लोगों के कितने सारे प्रश्न रहते हैं। बड़े बड़े दार्शनिक वो उनको भी समझ में नहीं आता इसे। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे आचार्य ने एकदम स्पष्ट किया है फिलॉसफी। तो जब ये फिलॉसफी स्पष्ट होता है तो फिर हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होंगे। नहीं तो नॉर्मल टेंडेंसी क्या होता है? दूसरों को दोष देना, वो नॉर्मल टेंडेंसी होता है। भक्ति में आने के बाद भी हम देखते हैं ऐसा टेंडेंसी तो रहता ही है। तो इसलिए फिलॉसफी को ठीक से समझना चाहिए। कुछ डाउट्स है इसमें? हाँ बोलिए। थोड़ा सा जैसे ईश्वर और जीव का जो ट्रायंगल बना रखा था हमने, तो अब कहने उससे पहले चर्चा ये होती कि जो जीव है वो कुछ भी नहीं करता है, और जो एक्शन रिएक्शंस हैं, जो पाप कर्म है, वो उसको भोगना पड़ता है। तो अब जो जीव है वो जीव है, और जो प्रकृति है वो जड़ है, मतलब स्टैटिक है, वो हिल नहीं सकती। तो वो लेकिन वो जीव है, तो वो तो अपना जैसे पानी पीना है, गिलास है, गुलाब जामुन खाना, तो मतलब उसको कंट्रोल तो कर ही रहा है ना। मतलब जब मर्जी चाह ले लिया। तो उसमें भगवान कैसे क्रिएट कर रहे हैं चीज़ों को? तो देखिए, तो पहली बात यह है कि जीव कुछ नहीं करता है, लेकिन एक चीज वो करता है। क्या है वो? इच्छा तो करता है। फिर वो इच्छा के अनुसार फिर भगवान उन इच्छाओं को पूर्ति करते हैं प्रकृति के माध्यम से। लेकिन वो जीव और वो जड़ है, तो खुद नहीं कर सकता वो। मतलब
in ठीक है, प्रकृति जड़ है, लेकिन कोई तो कंट्रोल कर रहा है ना उसको। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से प्रकृति कार्य करती है। तो ये प्रकृति है, ये जड़ है, लेकिन इसको तो कोई कंट्रोल कर रहा है ना। तो वो कंट्रोलर कौन है? वो भगवान है, भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। तो जैसे कि, तो वही उदाहरण है, तो जीव इच्छा करता है खून और मांस खाने की, जीव इच्छा करता है। तो फिर अगला शरीर जो है वो कौन देगा? प्रकृति देगी ना। लेकिन प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा। दुर्गा क्या है? छाया, छाया के समान है। तो छाया को कुछ इंडिपेंडेंस होती? तो उसी प्रकार प्रकृति को कुछ इंडिपेंडेंस नहीं है, लेकिन शरीर कौन देगा? प्रकृति देगी। तो इच्छा पूर्ति करने के, क्योंकि इच्छा पूर्ति करने के लिए, क्योंकि हम भौतिक जगत में है ना, तो इस भौतिक जगत में सब भौतिक चीज हैं, और भौतिक चीजों के माध्यम से ही इच्छा पूरी होती है। तो वो भौतिक चीज कौन देगा? प्रकृति देगी। ठीक है ना? जैसे मतलब उसको शेर का शरीर मिल भी गया, अब उस शेर के शरीर में जो एक्टिविटी हो रही है, तो वो जीव कर रहा है क्या? मतलब पाप तो मिलेगा, चलो उसको रिस्पॉन्सिबल हुआ कि डिजायर किया, अब जो उसकी एक्टिविटी हो रही है उस फील्ड में, तो कौन कर रहा है? वो प्रकृति करवाती है। इसमें जो पशु पक्षी है वो तो पूरी तरह से कठपुतली जैसे है, उनको तो इंडिपेंडेंस है ही नहीं। वो तो पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। तो इसलिए वो प्रकृति के नियम के खिलाफ कभी नहीं जाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते, ईशोपनिषद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो कभी आपने देखा कि शेर हाँ घास खा रहा है? देखा? संभव ही नहीं है। या कभी देखा कि गाय मांस खा रही? संभव नहीं, क्योंकि वो तो प्रकृति के नियम को एज इट इज फॉलो करते हैं, क्योंकि वो तो पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। उनको तो फ्री विल है ही नहीं, अगर है तो भी फुल्ली कंट्रोल्ड है वो फ्री विल, तो ना के बराबर है। तो इसलिए वो प्रकृति जो है सब कुछ करवाती है। वो सब जीवों के लिए लागू होता है, सब जीवों के लिए लागू होता है। तो जैसे कि अगर मुझे हाथ भी उठाना है तो परमिशन कौन देता है? प्रकृति। तो वही है ना, वो प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। तो जितने भी कर्म हैं वो सब प्रकृति करवाती है। एक थोड़ा छोटा सा बुझिए, जैसे प्रकृति करवा रही है, जीव ने जस्ट डिजायर करा, अब जो वो करवा रही है वो इसको क्या मिल रहा है जीव को उससे? मतलब वो तो आत्मा है। हाँ। उसका कोई जड़ का और उसका कुछ कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता, अपोजिट मतलब। नहीं, अभी हम हैं ना, जीव कहाँ पर है? अभी इस शरीर में है, तो कॉम्बिनेशन तो हो गया ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इनकॉम्पैटिबल कॉम्बिनेशन है ये। तो इसलिए हम दुख भुगतना पड़ता है, क्योंकि इनकॉम्पैटिबल कॉम्बिनेशन है, इस भौतिक शरीर में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी है, अभी फंस गए, क्या करें? तो अभी दुख भुगतना पड़ेगा। मतलब जस्ट फंस जाते हैं डिजायर की वजह से अलग अलग बॉडी में, तो वो दिक्कत। हाँ, तो एक बार शरीर मिल गया तो फिर क्या है? दुख ही दुख है ना, ये शरीर के साथ दुख ही दुख है।
अलग अलग प्रकार के दुख किसकी वजह से हैं? जो भी दुख हम भुगत रहे हैं उसका मेन कारण क्या है? ये शरीर है ना। हमने इच्छा किया, उस इच्छा के अनुसार हमें शरीर प्राप्त हुआ, और शरीर प्राप्त हुआ तो फिर उसका ये शरीर का परिणाम क्या है? दुख ही दुख। अलग अलग प्रकार के दुख किसके वजह से हैं? ये शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इसके वजह से ही। प्रभु जी, जैसे जीव के पास तो फ्री विल है, वो विल करता है, प्रकृति उसको फिलअप करती है, लेकिन प्रभु जी इसमें मतलब कुछ कर्म भी तो होना चाहिए ना कि वो चीज़ फुलफिल हो जाए, वरना जीव मतलब कुछ भी डिज़ायर करे तो वो कैसे पूरी हो सकती है? मतलब उसका कर्म में होना चाहिए ना वो, तब हाँ वो भी है, वो भी है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं, yes. The Lord fulfills his desire as he deserves. Man proposes, God disposes. तो वो बात सही है। तो वो इच्छा कर सकता है, लेकिन अगर वो कर्म में है तो पूर्ति होगी, नहीं तो। सेकंड प्रभु जी की जैसे आपने बताया कि आत्मा कुछ नहीं करता, ना करने देता, तो प्रभु जी, हाँ सर, तो प्रभु जी मतलब उसका जो मतलब जो पोजीशन है वो शुद्ध ही रहती है आत्मा भी, इसका मतलब। तो प्रभा जी वो उदाहरण देते हैं बारिश के पानी। बारिश का पानी जो है वो शुद्ध रहता है, लेकिन जैसे ही नीचे गिरता है दूषित। तो उसी प्रकार जीव तो हमेशा शुद्ध रहता है, लेकिन जैसे इस भौतिक जगत में आता है किससे दूषित होता है? तीन गुणों से, प्रकृति से। तो इसलिए तो जिस प्रकार जब वो बारिश का पानी दूषित होता है तो फिर हम क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं ना। फिल्टर करते हैं तो फिर से शुद्ध हो सकता है। तो उसी प्रकार अभी हम दूषित हो गए तो अभी क्या करना है? शुद्धिकरण। तो जो भी हम कर रहे हैं वो किसके लिए? उसी के लिए, शुद्धिकरण, ताकि हम फिर से शुद्ध हो जाए। उसके लिए प्रोसेस। हाँ बोलिए। जैसे इस प्रोसेस में हमने पूरा देखा कि जीव कुछ नहीं कर रहा और बहुत कुछ भी कर रहा है, तो बहुत कुछ वो इच्छा है। हाँ मतलब इच्छा, डिज़ायर भी कर रहा है। हाँ। तो जब वो फुलफिल हो रही है, सपोज उसकी रॉन्ग डिज़ायर है फुलफिल हो गई, तो उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है। लेकिन वो अगर अच्छी डिज़ायर और वो फुलफिल हुई तो हमें सारा क्रेडिट भगवान को देना है। तो ये थोड़ा इम्पार्शियल नहीं है, मतलब कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो हमारी वजह से हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान की वजह से, और चाहे दोनों ही इच्छा वो जीव की है। तो देखिए अल्टीमेटली दोनों भगवान की वजह से ही है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक केस में हम ले रहे हैं और एक में क्रेडिट भगवान ले रहे हैं, फिर दोनों ही भगवान ले हैं। देखिए जब जीव कुछ इच्छा करता है कुछ पुण्य कार्य करने की, ठीक है, तो फिर कुछ पुण्य कार्य किया, तो फिर जब पुण्य कार्य करता है तो फिर उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है ना। तो जो अच्छा रिजल्ट मिलता है तो फिर जीव सोच सकता है ना कि मैंने पुण्य कर्म किया, तो इसलिए उसके वजह से मुझे ये अच्छा रिजल्ट मिल गया, तो सोच सकता है ना उसमें गलती क्या है। लेकिन हम ऐसे सिखाते हैं भगवान को देना। हाँ, अभी ये भक्तों के लिए, ये भक्तों के लिए है, क्योंकि जो भक्त है, भक्त जानता है कि भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो भक्ति में क्या है? भक्ति में भगवान एक भक्त को उनकी इच्छा से भी ज्यादा कृपा दे सकते हैं, या उनके कैपेसिटी से भी ज्यादा उनको एम्पावर कर सकते हैं। तो इसलिए भक्त जानता है कि जो भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से, क्योंकि भक्ति में ये पुण्य कर्म का सिद्धांत काम नहीं करता है। तो सबसे पहले
हम भक्ति में आते हैं एक भक्त की कृपा से, अहेतु की कृपा है, क्योंकि हम डिमांड नहीं कर सकते। भगवान की कृपा, भक्त की कृपा दोनों अहेतु की है। तो इसलिए जब हम यह सिद्धांत को समझते हैं कि वास्तव में मेरे कैपेसिटी से मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये सब भगवान की कृपा है कि मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, कुछ सेवा कर पा रहा हूँ। तो जो भक्ति का डायनामिक्स थोड़ा अलग है, क्योंकि जैसे कि हम हरिनाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में भगवान का नाम कौन ले सकता है? केवल मुक्त आत्मा ले सकता है। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से हम ले पाए। तो हमें कितने सारे फैसिलिटीज दिए गए भक्ति करने के लिए। क्या भगवान को जबरदस्ती है क्या ये सब देना? नहीं। तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अच्छा कार्य किया इसके लिए मुझे भक्ति प्राप्त, ये ऐसा कुछ ये है ही नहीं ना। तो जैसे कि बाहर की दुनिया में क्या है, ठीक है, व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, उसके लिए उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर वो भौतिक पुण्य का सिद्धांत काम ही नहीं करता है यहाँ पर, क्योंकि भक्ति तो 3 गुणों से परे है। तो भौतिक पुण्य तो काम ही नहीं करता है इस भक्ति के क्षेत्र में। तो इसलिए ये भक्ति जो हमें प्राप्त हुआ है वो तो कॉजलेस है, अहेतु की कृपा है। तो इसलिए हमें डेफिनेटली कृतज्ञ रहना चाहिए भगवान और भक्तों। लेकिन जो साधारण व्यक्ति है वो सोच सकता है कि ठीक है, मुझे धन क्यों मिला। एटलीस्ट अगर व्यक्ति सोचेगा कि मेरे पुण्य कर्म के वजह से मुझे धन मिला, वो भी अच्छा है। नहीं तो जो सामान्य भौतिकवादी व्यक्ति है वो क्या सोचता है? हाँ, वो तो सोचता मैंने मेहनत किया इसलिए मिला। एटलीस्ट अगर वो सोचेगा मैंने कुछ पुण्य किया इसलिए मिला, तो एटलीस्ट वो एक्सेप्ट कर रहा है कि कोई कंट्रोलर है। तो एटलीस्ट दैट इज बेटर। सेकंड क्वेश्चन था कि जो श्लोक नंबर 4 है 5.4, उसके अंदर डिवोशनल सर्विस ब्रैकेट में लिखा गया कर्म योग। तो ये हमने डिस्कस किया ना। तो प्रभुपाद जी हमेशा वो जो भी योग है, प्रभुपाद जी उसको भक्ति योग में ट्रांसलेट करते हैं। तो जी इससे हम ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। तो एक पॉइंट यह है कि वो गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि भक्ति योग टॉप मोस्ट है। तो क्योंकि भक्ति योग टॉप मोस्ट है, तो इसलिए बाकी योग पद्धतियों के लक्षण ऑटोमेटिकली भक्ति योग में आ जाते हैं। ये एक्चुअली जो 6ठे अध्याय का लास्ट परपोर्ट है उसमें प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, वहां पर और हम डिटेल्स में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो लेकिन ये सिद्धांत है कि भक्ति योग में बाकी सब योग पद्धतियों के लक्षण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग का लक्षण क्या है? रिजल्ट से कर्मफल से अनासक्त। तो क्या हमें कर्मफल से अनासक्त होना है या नहीं? वो हमें भी जरूरत है। लेकिन वो कर्मयोगी जो है उसको पता नहीं एग्जैक्टली वो कर्मफल किसको देना है, क्योंकि भगवत साक्षात्कार नहीं है उसको, लेकिन हमें तो पता है। तो हमें किसको देना है कर्मफल? भगवान को देना। तो उसी प्रकार ज्ञानी का लक्षण क्या है? वो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, परम सत्य का ज्ञान। तो क्या हम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? तो इसलिए हम शास्त्र पढ़ रहे हैं। अंतर क्या है? मेन डिफरेंस क्या है? जो ज्ञानी जो है उसका प्रोसेस क्या है? मेंटल स्पेक्यूलेशन, वो प्रोसेस है। और हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? परंपरा से, एज इट इज। डिसेंडिंग प्रोसेस, असेंडिंग प्रोसेस, ये अंतर है। लेकिन ज्ञान तो दोनों प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हालांकि जो एक्चुअल श्लोक में निष्काम कर्मयोग बताया गया है,
लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी भक्ति लिखते हैं, इसमें कुछ गलती नहीं है, क्योंकि वो सिद्धांत भक्ति के लिए भी लागू होता है, तो इसलिए वो गलत नहीं है, सिद्धांत के तौर पर भी वो गलत नहीं है। अभी दूसरा पॉइंट क्या है, प्रभुपाद जी इस प्रकार क्यों करते हैं? दो कारण है। एक कारण यह है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है सामान्य लोगों के लिए, तो हम सब लोगों को बांटते हैं भगवद गीता, तो जिस व्यक्ति को कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो क्या अगर प्रभुपाद जी सब टेक्निकल डिटेल्स जो हम पढ़ाए, क्योंकि ये तो हम शास्त्रीय कोर्स है भक्तों के लिए, तो हम कुछ टेक्निकल डिटेल्स बता रहे हैं, लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति इस कलयुग में, आज के दिन में कोई सामान्य व्यक्ति पढ़ता है कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग, कुछ समझ में आएगा उसको? कुछ समझ में नहीं आए। बाहर के लोगों की बात तो छोड़ो, बहुत सारे भक्तों को भी समझ में नहीं आता, ये सत्य है। आप पूछ सकते हैं, भक्तों से पूछ सकते हैं कर्म योग का डेफिनेशन क्या है, ज्ञान योग में क्या, आप पूछ सकते हैं, कितने भक्त उत्तर देंगे आप देखिए। तो सामान्य लोग क्या समझेंगे? और दूसरी बात क्या है, अगर मान लो समझेंगे भी, कुछ कर सकते हैं? ज्ञान योग, अष्टांग योग कोई कर सकता है? वो तो केवल नकल है। तो प्रभुपाद जी कितने सारे लेक्चर्स में बताते हैं, सिटी में संभव नहीं है योग करना, अष्टांग योग। बेंगलोर में आरएसएस वालों ने एक बड़ा केंद्र खोल के रखा है, अष्टांग योग केंद्र, वो हमारे सेंटर के सामने ही है। लेकिन वहां पर और भी बहुत सारे कार्य चलते हैं, स्विमिंग पूल भी है। तो क्या योग हो गया? तो वो सब संभव नहीं है, वो तो यूजलेस। तो इसलिए सामान्य लोग ये सब चीज नहीं समझ पाते, न कर पाएंगे। तो इसलिए एक ही सॉल्यूशन क्या है आज के लोगों को? भक्ति। तो इसलिए प्रभुपाद जी हर एक तात्पर्य में भक्ति के बारे में बताते हैं। तुम लोग समझो या न समझो, ये सारे टेक्निकल चीज समझेंगे तो भी कुछ लाभ नहीं, अल्टीमेटली करना क्या है? भक्ति करना है। तो इसलिए हर तात्पर्य में प्रभुपाद जी भक्ति भक्ति भक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण। और इसका परिणाम क्या हुआ है? इसका परिणाम यह हुआ है कि पर्सनली मैंने कई लोगों से मिला, भक्तों से, जिन्होंने केवल ये प्रभुपाद किताब पढ़कर बिना किसी भक्त को मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू किया। हाँ? आपने भी शुरू किया? देखो यहीं पर है। और कितने सारे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी बार बार ऑलमोस्ट हर एक तात्पर्य में, और उसका परिणाम क्या हुआ? कितने सारे लोग भक्त बन गए। तो प्रयोजन तो वही है ना, और क्या चाहिए? अष्टांग योग, ज्ञान योग तो कोई कर ही नहीं सकता। तो इसलिए ये प्रभुपाद जी की करुणा है, क्योंकि यही युग धर्म है, वही करना। तो एक फ्रांस में एक विद्वान थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी गीता पढ़ा और उन्होंने वो भक्त से कहा, अरे आपके स्वामी जी ने क्या लिखा है ये भगवत गीता, हर एक तात्पर्य में, हर एक श्लोक के लिए, सब श्लोकों में भक्ति योग, हरे कृष्ण महामंत्र। ये कैसा परपोर्ट है? तो वो कंप्लेन कर रहे, तो भक्त आकर प्रभुपाद जी को बताए। तो प्रभुपाद जी इसको सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। प्रभुपाद जी ने कहा, he has actually understood।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ये सब टेक्निकल डिटेल्स इत्यादि नहीं जानते हैं। प्रभुपाद जी ने जानबूझकर ऐसे किया है और उसके पीछे पर्पस यही है। ठीक है ना? सबको ये समझना चाहिए क्योंकि लोग पूछते ही ये प्रश्न और हमें उत्तर आना चाहिए। तो सब लोग समझ गए ना कि क्यों प्रभुपाद जी ने ऐसे लिखा है? क्योंकि लोग पूछते हैं। क्योंकि श्लोक में तो निष्काम कर्म योग है, प्रभुपाद जी तो भक्ति योग लिखते हैं। लगता है कुछ गलती है ना? तो सिद्धांत के तौर पर भी गलत नहीं, समझ गए ना? सिद्धांत के तौर पर भी गलत नहीं और फिर प्रभुपाद जी करुणा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो श्लोक नंबर जो 11 है उसकी जो ट्रांसलेशन पढ़ के मतलब आपने बताया कि वो कर्म ज्ञान योगी है, उसके सिम्टम्स है वो ऐसा होता है, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन पढ़ के तो जो कर्म योग है उससे ये रिलेट हो रही है 11 नंबर कि 11 में जो निष्काम कर्मयोग बताया उसमें कंप्लीट रिनंसिएशन रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज, वही इसके अंदर मतलब बताया गया है। और जो ज्ञानी योग के अंदर था कि वो जो रिनाउंस अपनी एक्टिविटी को भी मतलब रिनाउंस कर देता है, लेकिन इसके अंदर एक्टिविटी तो रिनाउंस नहीं हो रही। नहीं तो ये तो निष्काम कर्म योगी है। नहीं, आपने शायद ज्ञान योग बताया था कि ज्ञान योग के सिम्टम्स है। तो क्या है, अभी ये एडवांस निष्काम कर्म योगी है जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब तक उन्होंने कर्म को त्याग नहीं किया है, कर्म संन्यास नहीं लिया है, तो इसलिए इन सारे श्लोकों में वही पॉइंट है ना। हाँ, तो जैसे कि पिछले श्लोकों में भी जैसे कि सातवां श्लोक में भी क्या है? कुर्वन् अपि न लिप्यते। कुर्वन् अपि का मतलब क्या है? कार्य करते हुए भी बंधन में नहीं फंसता है। तो ये सारे श्लोकों में ये निष्काम कर्म योगी है जो अभी भी अपना कर्म कर रहा है। तो उसी प्रकार 10वें श्लोक में भी ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, मतलब वो कर्म कर रहा है लेकिन संगम त्यक्त्वा, कर्मफल से अनासक्त। तो ये एडवांस निष्काम कर्म योगी है जिनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, परम सत्य है। तो ये ज्ञान प्राप्त हुआ है लेकिन अब तक कर्म संन्यास तो नहीं लिया है। अभी मिक्सचर वर्ड मत यूज करो। ही इज एन एडवांस कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी, who is on the platform of ज्ञान। एडवांस निष्काम कर्म योगी who is on the platform of ज्ञान, ये सिचुएशन। ठीक है ना? और फिर आगे के श्लोकों में हम देखेंगे, फिर धीरे धीरे फिर वो कर्म को भी ध्यान। हाँ ठीक है, लास्ट प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये क्वेश्चन था जीव ईश्वर प्रकृति से कि प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते कि जैसे धान के खेत में बिच्छू अंडे देता है लेकिन धान में से इसका मतलब नहीं बिच्छू हो रहे हैं, तो इसी तरह मतलब लग सकता है कि प्रकृति सब कुछ कर रही है लेकिन अल्टीमेटली भगवान ही कर रहे हैं। तो ये कैसे रिलेट कर रहे थे मतलब? हाँ तो सही है ना, जो आपने बताया वो सही है। तो जैसे आप बता रहे थे कि प्रकृति अगर मैं हाथ उठा रहा हूँ हाँ तो वही तो जैसे वो उदाहरण आपने दिया वृश्चिक तंदुल न्याय, तो लगता है कि वो बिच्छू कहाँ से आए? धान से। तो उसी प्रकार लगता है कि सब कुछ प्रकृति कर रही है लेकिन प्रकृति के पीछे कोई और है। ठीक है, इसका मतलब भगवान ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। हाँ सही। ठीक है, अभी जो लास्ट सेक्शन अभी नेक्स्ट सेक्शन क्या है? ओके, वी आर ऑलमोस्ट क्लोज। ओके, 17 to 26 नहीं 16 रह गया ना। ओके, ज्ञानेन तु तत् अज्ञानं येषाम् आश्रितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाश्यते परपरम्। When however one is enlightened with the knowledge by which nations is destroyed, then his knowledge reveals everything as the sun lights up everything in the daytime. तो इस प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है
तो फिर अज्ञानता दूर होगा तो फिर सब कुछ पता चलता है। तो जिस प्रकार जैसे सूर्योदय होता है तो अंधकार दूर चला जाता है। सो यस, प्रभुपाद जी लिखते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रबोधिते, प्रभुपाद जी कोट करें। और फिर आगे लिखते हैं after passing through many births, when one perfectly knowledge surrenders into Krishna, or when one attains Krishna consciousness and everything is revealed to him as everything is revealed by the sun in the daytime. ठीक है, तो इस प्रकार ये ज्ञानी को ये सब ज्ञान प्राप्त होता है। Okay, last this section 726, the vision of a ज्ञानी and परमात्मा वाली, मुझे पता नहीं ये and परमात्मा वाली क्यों लिखा है। Of course, परमात्मा का भी कुछ साक्षात्कार हो सकता है कुछ हद तक, but any case the main thing is the vision of a ज्ञानी। तो अभी इस निष्काम कर्मयोग का ज्ञान जो है और बढ़ रहा है और ये देहात्म बुद्धि से वो अनासक्त हो रहा है। तो इसलिए ये अलग अलग सिम्टम्स यहाँ पर बताया गया। His symptoms, vision 17 तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठस्तत्परायणः गच्छन्ति अपनरावृतं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। When one's intelligence, mind, faith and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. तो मुक्ति के पथ पर और अग्रसर हो रहा है ये निष्काम कर्मयोगी। क्यों? क्योंकि उनका जो मन, बुद्धि, श्रद्धा ये सब किस पर केंद्रित है? परम सत्य, परम सत्य। जो भी उनका साक्षात्कार है वो परम सत्य पर केंद्रित है। तो ये सब जैसे कि पिछले श्लोकों में हमने देखा कि ये सब साक्षात्कार हुआ है कि वो जीव हैं, परम सत्य हैं, जो उनके नियंत्रक है। तो ये सब साक्षात्कार हुआ है, तो इसलिए वो पूरी तरह से परम सत्य के ऊपर केंद्रित अपने सब कुछ केंद्रित करते हैं। और निर्धूत कल्मष, क्योंकि शारीरिक चेतना तो है ही नहीं अभी, तो इसलिए जो भी पाप कर्म है, जो भी पाप करने की इच्छा है, सब खत्म हो जाते हैं और इसलिए मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 18 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। The humble sages by virtue of true knowledge see with equal vision learned and gentle brahmana, cow, elephant, dog and a dog eater. तो यहाँ पर देखिए ये अलग अलग शरीर हैं, तीन गुणों से अलग अलग तरीके से प्रभावित हुए। जो ब्राह्मण है सत्वगुण में, गाय सत्वगुण, हाथी तमोगुण, ज्यादा तमोगुण होता है ना हाथी, कुत्ता तमोगुण, रजोगुण, और जो शोपाका डॉग ईटर तमोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इस प्रकार शरीर जो है अलग अलग गुणों से प्रभावित है, लेकिन ये जो ज्ञानी व्यक्ति है वो क्या देखता है? क्या देखता है? आत्मा को, आत्मा को देखता है। So that's what Prabhupada writes in the purport. This is due to the relationship to the Supreme. For the Supreme Lord by splendid portion as Paramatma is present in everyone's heart. So such an understanding of the Supreme is real knowledge. तो वो समझ जाता है कि आत्मा है, परमात्मा है, तो ये सब ज्ञान एक ज्ञानी को प्राप्त होता है। तो ठीक है, फिर इसका परिणाम क्या होता है? 19 इहे बते जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। Those whose minds are established in sameness and equanimity have already conquered the conditions of birth and death. They are flawless like Brahman and thus they are already situated in Brahman. तो वो समझ जाते हैं कि जो परम सत्य है वो निरपेक्ष है, वो इम्पार्शियल है। तो इसलिए क्योंकि वो अपना ध्यान को
ऐसे परम सत्य पर केंद्र करते हैं उनको भी वैसे ही गुण प्राप्त हो जाते हैं। तो जिस प्रकार परम सत्य निर्दोष है तो उनका भी गुण वैसा ही हो जाता है, निर्दोष। तो ये सिद्धांत हमारे भी लागू होता है। तो जैसे कि भागवतम के 5वें स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वैर् गुणैः तत्र समासते सुरः। तो जब हम अकिंचन भक्ति करते हैं तो फिर जो भगवान के गुण है वो हमें भी आ जाते। ऑफ कोर्स गुण तो ऑलरेडी है, तो गुण तो ऑलरेडी है क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, लेकिन अब वो सारे गुण ढके हुए हैं भौतिक कलमश से। तो भक्ति करने से क्या होता है, भौतिक कलमश निकल जाता है और सारे सद्गुण विकसित हो जाते हैं। तो लेकिन पॉइंट यह है कि जैसे हम भगवान और उनके शुद्ध भक्तों से संग करते हैं तो फिर ये सारे गुण प्रकट होते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी, क्योंकि ये ज्ञानी निर्विशेष ब्रह्म पर ध्यान कर रहा है, तो इसलिए जो निर्विशेष ब्रह्म है वो भी भगवान की कांति है, वो आध्यात्मिक है, निर्दोष है। तो इसलिए वैसे ही गुण इस ज्ञानी में भी आते हैं। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मनिति स्थितः। तो ही सिचुएटेड ऑन द ब्रह्मन प्लेटफॉर्म, on the liberated platform. 20. न प्रविशेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। A person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered, who knows the signs of God, is already situated. तो ये सब जो एडवांस निष्काम कर्मयोगी हैं, जिनको ये सब ज्ञान का साक्षात्कार हुआ है, ऐसे व्यक्ति का लक्षण यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए अभी क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर स्थित है तो इसलिए कुछ भौतिक इंद्रियोक्ति की इच्छा नहीं है। तो इसलिए न प्ररिषेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च अप्रियम। तो प्रिय अप्रिय, तो जब हमें कुछ ऐसे चीज प्राप्त होते हैं जो हमें पसंद है तो क्या होता है, हाँ बहुत खुश हो। और अगर ऐसी चीज प्राप्त होंगी जो हम पसंद नहीं करते हैं, हाँ हाँ, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो लेकिन क्योंकि इस व्यक्ति को तो भौतिक इच्छा तो है ही नहीं, तो इसलिए स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ हो। So he is not affected by these dualities of priyam and apriyam. Brahmavid, because he is Brahmavid Brahmani Sthitah. So he is situated on the Brahman platform. 21. Bhayasvarshesha saktatma vindati atmani yat sukham sa brahma yoga yuktatma sukham akshayam ashnute. Such a liberated person. तो अभी ये ज्ञानी जो है, अभी ये निष्काम कर्म योगी, ये मुक्त अवस्था में है। तो मुक्त अवस्था में ही कैन बी कॉल्ड एज अ ज्ञानी। ऑन द लिबरेटेड प्लेटफॉर्म ही इज अ ज्ञानी। सो देयरफॉर ब्रह्म योग युक्तात्मा, सो ही इज सिचुएटेड इन ब्रह्मन। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को क्या है, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा। बाह्य स्पर्श का मतलब क्या है, विषय वस्तुओं के प्रति कुछ भी आसक्ति नहीं। क्यों, विन्दति आत्मनि यत् सुखम। सुख की अनुभूति कहाँ कर रहा है वो, अंदर। जो परम सत्य के साथ जो उनका संबंध है, आत्मा का संबंध परम सत्य के साथ, क्योंकि वो संबंध स्थापित हुआ है, उसी संबंध में वो आनंद की अनुभूति कर रहा है। तो इसलिए भौतिक चीजों में आनंद की जरूरत नहीं है। ये सिद्धांत हमें भी लागू होता है। सेकेंड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है ना, क्या 259, हाँ परम दृष्टवा निवर्तते। तो वो परम दृष्टवा कैसे मिलता है, तो जितना भगवान के साथ संबंध हमारा घनिष्ठ हो जाता है तो फिर उतना भक्ति में टेस्ट बढ़ता है, और फिर ऑटोमेटिकली इंद्रिय तृप्ति के प्रति जो आसक्ति है
टूट जाता है। तो वही सिद्धांत यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ज्ञानी जो है, क्योंकि वो भगवान के साथ परम सत्य, जो भी उनका साक्षात्कार है, लेकिन वो परम सत्य के साथ संबंध में आनंद की अनुभूति कर रहा है, तो इसलिए भौतिक चीज़ों में कुछ आसक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी यमुनाचार्य का ये प्रसिद्ध श्लोक कोट कर रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, a person in Brahma Yoga or Krishna consciousness is so absorbed in the loving service of the Lord that he loses his taste for material sense pleasure altogether. The highest pleasure in terms of matter is sex pleasure. The whole world is moving under its spell, and a materialist cannot work at all without this motivation. But a person engaged in Krishna consciousness can work with greater vigor without sense pleasure, sex pleasure, which he avoids. That is the test in spiritual realization. Spiritual realization and sex pleasure go ill together. A Krishna conscious person is not attracted to any kind of sense pleasure due to his being a liberated soul. और फिर ये प्रसिद्ध श्लोक, तो ये साक्षात्कार होता है योगी को, जो अगला श्लोक में बताया गया है, यही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनयेवते आदि अंतवंत कौन्तेया नान्तेषु रमते बुधा। अनुवाद पढ़िए। An intelligent person does not take part in the sources of misery which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. हाँ, तो योगियों ये सब समझ जाता है कि ये विषय वस्तु के संपर्क में आने से क्या मिलने वाला है, दुख योनय, मतलब दुख का जन्म होता है। जैसे ही विषय वस्तुओं के साथ इंद्रियों का संपर्क होता है, दुख का जन्म होता है। तो ये साक्षात्कार होना चाहिए। हाँ, आदि अंत, शुरुआत में भी अंत में भी हर समय दुख ही मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में, कई लेक्चर्स में कहते हैं, सेक्स लाइफ लीगल और इलीगल, cause of so much trouble. तो इंद्र तृप्ति लीगल हो इलीगल हो जो भी हो, सब दुख का कारण है। तो इसलिए न देशु रमते बुधः, जो बुद्धिमान व्यक्ति है इसमें रमन नहीं करता है, does not delight in such sense gratification। वो जानता है कि हालांकि शुरुआत में लगता है कि कुछ सुख है, लेकिन अंत में क्या मिलने वाला, दुख ही दुख है। तो पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा, प्रभा जी ये श्लोक पर क्लास देते, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव मेतम। तो उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, ये कोट करते हैं, डाल ढोल बजाकर बेवकूफ बनाओ। सुनो, तो जिस व्यक्ति का शादी हो रहा है तो क्या होता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसको घोड़े पर बिठाते हैं, राजा की तरह, सब राजा की तरह ड्रेस होता है, सब कुछ होता है, लेकिन क्या है, वो बेवकूफ बन रहा है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, वो लगता है उसको कि मैं तो अभी राजा बन गया, लेकिन वो क्या है, वो गधा है। प्रभुपाद जी डायरेक्टली कहते हैं, नहीं इंग्लिश लेक्चर ही है, लेकिन प्रभुपाद जी हिंदी वर्ड्स यूज कर रहे हैं। ही इज गधा। तो ये सत्य है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर ये श्लोक कोट कर रहे हैं, नायम देवो देवा जामन लोके कष्टान कामान। और फिर अंत में प्रभुपाद जी लिखते हैं, therefore those who are true yogis or learned transcendentalists are not attracted by sense pleasures
which are the cause of continuous material existence. The more one is addicted to material pleasures, the more he is entrapped by material mysteries. तो इसलिए अभी ये इंद्रदुप्ति की इच्छा तो रहते, तो क्या करना चाहिए? अगले श्लोक में बता रहे, शक्नोति हेव यशोडं प्राप् शरीर विमोक्षणात् क्राम क्रोधा भवं वेगं स युक्ता स सुखी नरः. Before giving up this present body, one is able to tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger, is well situated in his happiness. तो क्या करना पड़ेगा? Tolerate. खत्म नहीं होने वाला है. वो तो कब होगा? वो मुक्त अवस्था में. मुक्त अवस्था में पूरी तरह से ये इच्छाएं समाप्त होंगी, लेकिन तब तक सहन करना पड़ेगा. लेकिन केवल सहन नहीं, फिर आगे बताएंगे सहन कब तक करेगा व्यक्ति. मुश्किल है ना. केवल अगर फोर्सफुली व्यक्ति कंट्रोल करने का प्रयास करेगा, कब तक कर पाएगा? वो मुश्किल है. लेकिन फिर भी यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, प्राप्त शरीर विमोक्षणा, शरीर छोड़ने तक सहन करना पड़ेगा. ये सब वेग जो है, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ, तो ये सब वेग है. लेकिन क्या करें? सहन करना पड़ेगा. कब तक? जब तक शरीर है सहन करना पड़ेगा. लेकिन साथ साथ में कुछ और भी चीज करना है. तो इसलिए प्रभुपाद जी लास्ट सेंटेंस, it is a duty of the transcendentalist to try strenuously to control desire and anger, kama krodha. तो one has to try to control. आसान नहीं है, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा. लेकिन साथ साथ में और एक चीज करना होगा. क्या है वो? अगले श्लोक, यो अंत सुख अंतरारामस् तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति. One whose happiness is within, whose active and rejoices within, whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme and ultimately attains the Supreme. तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, unless one is able to relish happiness from within, how can one retire from the external engagements meant for deriving superficial happiness? A liberated person enjoys happiness by factual experience. He can therefore sit silently at any place and enjoy the activities of life from within. Such a liberated person no longer desires external material happiness. This state is called Brahma Bhuta, that is the liberated platform, attaining which one is assured of going back to God and back to home. तो ये अभी ये ज्ञानी का स्तर है, या मुक्त अवस्था है ये, तो जिसमें व्यक्ति कर्म संन्यास लेने के लिए योग्य बनता है. क्योंकि अभी कुछ भौतिक इच्छा तो है ही नहीं, तो इसलिए अभी वो कर्म संन्यास लेने के लिए योग्य हो जाता है. लेता या नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये मुक्त अवस्था है, और इस मुक्त अवस्था में वो योग्य है कर्म संन्यास लेने के लिए. तो ये ज्ञानी है. तो अभी ये जो निष्काम कर्मयोगी है, अभी क्या बन गया? ज्ञानी. तो यहाँ पर अंत सुख, अंतरारामस, अंतर ज्योति सब अंदर, बाहर कुछ नहीं. तो बाहर जाएंगे तो कितने सारे शॉप्स, कितने सारी चीज, लोग इधर उधर भाग रहे. किसके लिए? उसी के लिए भाग रहे. वो सब चीजों को प्राप्त करने के लिए लोग भाग रहे. लेकिन जो योगी होता है, कुछ लेना देना नहीं इन चीजों से, क्योंकि वो जानता है कि ये सारी चीजों से केवल दुख मिलेगा, कुछ सुख नहीं मिलेगा. तो इसलिए सब सुख कहाँ? अंदर, भगवान के साथ संबंध में वो सुख. तो फिर वो जबरदस्ती सहन करने की जरूरत नहीं है. तो जितना वो सुख की अनुभूति करेगा योगी, तो फिर ये सेंसेस को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा.
नहीं तो जबरदस्ती कब तक कंट्रोल करेगा। हाँ, तो इसलिए ये हमारे लिए भी ये सिद्धांत लागू है। तो जितना हमें वो परम दृष्टवा निवर्तते, हायर टेस्ट की अनुभूति होगी, तो फिर इंद्रियों को वश में करना वो आसान हो जाएगा। नहीं तो इसलिए अल्टीमेटली हमारे जो भक्तिमय कार्य है वो ज़्यादा तीव्र होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो जितना भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान क्या देंगे? हायर टेस्ट, रुचि, वो भगवान देंगे। अगर हमारी साधना, चैंटिंग ये सब ढीला है तो फिर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो हायर टेस्ट नहीं देंगे, तो फिर मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत बड़ा स्ट्रगल हो जाएगा। तो जबरदस्ती कंट्रोल करो, कब तक करो? तो इसलिए भक्ति का मुख्य लक्ष्य क्या है? क्या है? समसिद्धि। जितना हम भगवान को प्रसन्न करेंगे हमारे भक्तिमय कार्य से, फिर भगवान वो हायर टेस्ट देंगे, फिर आसान हो जाता है सब। तो इसलिए भक्तिमय जीवन में अल्टीमेटली भगवान क्या चाहते हैं? भक्ति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। और वो प्रेम का मतलब क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करना। और जब भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य किया जाता है तो उसमें कुछ क्वालिटी भी होना चाहिए ना, क्वालिटी होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर। ये सब साइंस है, इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं है। और जरूरत नहीं है कि कुछ बड़ा सेवा ही होना चाहिए, नहीं ना, अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन प्रेम के साथ, क्वालिटी। भगवान वो क्वालिटी देखते हैं। क्वांटिटी है तो अच्छा है, लेकिन क्वांटिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? क्वालिटी। जैसे कि आपने मतलब बताया है सारे लेक्चर्स के दौरान, मेरा क्वेश्चन ऐसे ही था कि जैसे फिर मतलब ज्ञानी के बारे में आप ऐसे बताए थे ना कि वो जी वो मेंटल स्पेकुलेशन के माध्यम मतलब करता है, और आपने ऐसे ही बताया कि वो मतलब कर्म योग, निष्काम कर्म योग के माध्यम से वो धीरे धीरे शुद्ध होता है। हाँ, तो शुद्ध हो जाता है और फिर वो ज्ञानी बन जाता है। तो ये सब हो जाता है, लेकिन जब ऑफ कोर्स ये सब प्रोसेस में ही आता है, लेकिन स्पेशली जब वो और ये मुक्त अवस्था पर आ जाता है और फिर परम सत्य को समझने का प्रयास करता है, तो निष्काम कर्म योग के स्तर पर क्या है? वो अपना नियत कर्म कर रहा है, कर्मफल को त्याग रहा है। तो उसमें ज़्यादा समय भी नहीं है ज़्यादा परम सत्य के बारे में सोचने के लिए, समझने का। लेकिन स्पेशली जब वो और एडवांस हो जाता है और फिर उसको रियलाइजेशन होता है कि मैं आत्मा हूँ, परम सत्य है, परम सत्य के साथ मेरा संबंध क्या है, तो उस समय वो परम सत्य को समझने का प्रयास करता है एडवांस स्टेजेस में। तो जब वो परम सत्य को समझने का प्रयास करता है तो फिर वो वेद, उपनिषद इत्यादि वो सब पढ़कर समझने का प्रयास करता है। लेकिन क्योंकि वो अधिकृत व्यक्ति से, अधिकृत गुरु से वो समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो क्या करता है? स्पेकुलेशन। ठीक है, मतलब वो उस प्रोसेस, मतलब वेद आदि जो समझने का प्रयास कर रहा है, उस प्रोसेस को ही मेंटल स्पेकुलेशन कहा जा रहा है। हाँ। तो वो परम सत्य को समझने का तरीका जो है वो मेंटल स्पेकुलेशन। ठीक है, वैसे मेंटल स्पेकुलेशन से वो जान पाता है मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी को। हाँ, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, बाय मेंटल स्पेकुलेशन एट द मोस्ट वन कैन रीच अप टू इम्पर्सनल ब्रह्म। तो इसलिए ज्यादातर ज्ञानी, उनका साक्षात्कार वही होता है कि परम सत्य निराकार। ठीक।
Okay, 25. लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषया क्षीण कल्मषः छिन्नद्वैतायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः. Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all sins, achieve liberation in the Supreme. तो इस प्रकार ये जो ज्ञानी है लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, तो अल्टीमेटली वो मुक्त अवस्था पर आ जाते हैं और सारा क्षीण कल्मश, जो भी कल्मश है, भौतिक कल्मश, वो सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि युद्धतुक्ति करने की तो इच्छा ही नहीं, तो पाप कर्म होगा ही नहीं कुछ. तो इसलिए ऋषय क्षीण कल्मश छिन्न द्वैत यथात्मानः, तो जो भी डाउट्स है वो सब खत्म हो जाते हैं. और क्योंकि खुद की युद्धतुक्ति की इच्छा ही नहीं, तो और साथ में वो जान लेता है कि सब जीवात्मा है, सब शरीरों में जीवात्मा है, भगवान का अंश है, तो इसलिए सबके भलाई के लिए वो काम करता है और इस प्रकार वो मुक्त अवस्था पर आ जाता है. लिबरेशन द सुप्रीम, ब्रह्म निर्वाण, मुक्त अवस्था, तो उसको प्राप्त करता है. ठीक है. 26. काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां. Those are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined, constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation of the Supreme in a very near future. तो यहाँ पर भगवान आश्वासन दे रहे हैं योगियों को, ये ज्ञानियों को या निष्काम कर्मियों, इनको आश्वासन दे रहे हैं कि इस प्रकार तो कड़ी तपस्या करते हैं, आसान नहीं है सारा मन और इंद्रियों को वश में करना, और उनके लिए तो हायर टेस्ट कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो अपने सेंसेस को एक्टिव एंगेजमेंट नहीं देते हैं, तो इसलिए ज़्यादा दबाकर रखते हैं. नो एंगेजमेंट फॉर द सेंसेस, तो इसलिए कड़ी तपस्या करते हैं. तो जो ज्ञानी योगी लोग होते हैं वो तो हिमालय में वगैरह रहते हैं, सिटीज में नहीं रहते. तो इसलिए काम क्रोधो विमुक्तात्मा विमुक्ता नाम, तो इस प्रकार काम क्रोध से मुक्त होकर, सारे भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर, फिर यतीनाम यतचेतसाम, तो इस प्रकार बहुत प्रयास करते हैं ये सब मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए. तो इसलिए भगवान उनको आश्वासन दे रहे हैं कि ठीक है, अभीतः, अभीतः का मतलब क्या है, इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्दी, ज़्यादा समय नहीं, ब्रह्म निर्वाणम, बहुत जल्दी ही वो मुक्त अवस्था पर आ जाएंगे. तो इस प्रकार भगवान को आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार वो कड़ी तपस्या कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी वो मुक्त अवस्था पर आ जाएंगे. तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं. ठीक है, वो लास्ट पैराग्राफ कोई सेकंड लास्ट पैराग्राफ, इन द कंडीशन सोल. In the conditioned soul, the desire to enjoy the fruitive results of work is so deep rooted that it is very difficult even for the great sages to control such desires. Despite great endeavors, a devotee of the Lord constantly engaged in devotional service in Krishna consciousness, perfect in self-realization, very quickly attains liberation in the Supreme. Owing to his complete knowledge in self-realization, he always remains in trance. To cite an analogous example of this, the darshana dhyana samparshare matsya kurma vihangama swani apatyani pushnanti tataham abhipadmaja. By vision, by meditation and by touch only do the fish, the tortoise and the birds maintain their offspring. Similarly do I also, O Padmaja. The fish brings up its offspring simply by looking at them. The tortoise brings up its offspring simply by meditation. The eggs of the tortoise are laid on land, and the tortoise meditate on the eggs while in the water. Similarly, the devotee in Krishna consciousness, although far away from the Lord's abode, can elevate himself to the abode simply by thinking of him constantly. By engagement in Krishna consciousness, he does not feel the pangs of material miseries. This state of life is called Brahman Nirvana, or the absence of material miseries due to being constantly immersed in the Supreme. तो इस प्रकार तो ये तीन उदाहरण इसमें दिया जा रहा है
क्योंकि वहाँ पर क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों का पालन करते हैं। तो उसी प्रकार तो योगी को लग सकता है अरे मैं तो यहाँ पर हूँ, भगवान के ऊपर ध्यान, भगवान तो वहाँ पर बहुत दूर है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान कहीं भी हो सकते हैं, बहुत दूर भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान पालन करते हैं। हाँ, तो ये समझाने के लिए ये उदाहरण दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो ज्ञानी है वो मुक्त अवस्था पर आ जाता है। और फिर अगले 2 श्लोक जो है ये अष्टांग योग के बारे में। तो अगर बाय चांस उनको एक परमात्मावादी का संग मिल जाता है तो फिर वो अष्टांग योग प्रैक्टिस करता है। तो ये तो ऑफकोर्स नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल्स हैं। यहाँ पर एक सारांश में भगवान ने बताया। ट्रांसलेशन पढ़िए 27-28। Shutting all external senses objects, keeping the eyes and vision concentrated between the 2 eyebrows, suspending the inward and outward breaths within the nostrils, and thus controlling the mind, senses, and intelligence, the transcendentalist aiming at liberation become free from desire, fear, and anger. One who is always in this state is certainly liberated. Okay, so this is Ashtanga Yoga that is being described. तो इसलिए आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। Okay, and then finally the last verse 29. Bhoktaram yajnatapasam sarvalokamaheshwaram suradam sarvabhutanam gyatva mam shantivrichyati. A person in full consciousness of me, knowing me to meet with the ultimate beneficiary of all sacrifice and austerity, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. तो ये हम ये कमेंट्री पढ़ेंगे विश्वाचल का होता। हाँ, 27-28 is introduction of ध्यान योग। हाँ, ये पढ़िए। This verse explains that yogis who act in this way by obtaining knowledge of Paramatma through bhakti, like the jnanis, attain liberation. I am the guardian Bhoktaram of the yajna of the karma yogis and the austerities the tapsam of the jnanis. हाँ, तो यहाँ पर भोक्ताराम यज्ञ तपसाम. So Bhoktaram refers to the yajna of the karma yogis. So Bhoktaram refers to the enjoyer of the yajna of the karma yogis. So karma kandis, karma yogis, they can perform yajnas. And so who is the Bhokta? Krishna is the Bhokta. And what do the Jnanis do? The Jnanis do a lot of tapasya, austerities. Okay? So Bhoktaram yajna tapasam. So tapasam is for Jnanis, the austerities of the Jnanis. आगे बढ़ो. That means that I am the object of worship of the karma yogis and jnanis. So that Bhoktaram yajna tapasam refers to karma yogis and jnana yogis. I am the great controller of all people, Sarvaloka Maheshwaram, the Paramatma, the object of worship of the Ashtanga yogis. So the Bhoktaram yajna tapasam Sarvaloka Maheshwaram. So Sarvaloka Maheshwaram refers to Paramatma. And Paramatma is the object of worship for the Ashtanga yogis. So in this way, Krishna is trying to explain that. तो भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि सबका अंतिम लक्ष्य मैं ही हूँ. कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, अष्टांग योगी हो, भक्ति योगी हो, सबका लक्ष्य मैं ही हूँ. क्योंकि अल्टीमेटली वही परम सत्य तो एक ही है ना. वही परम सत्य का साक्षात्कार का अलग अलग स्तर है. करेक्ट. वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान. तो एक ही परम सत्य है, लेकिन वही एक परम सत्य का अलग अलग साक्षात्कार है. तो अल्टीमेटली सबका लक्ष्य अल्टीमेटली भगवान ही है. हाँ, आगे. I am the friend of all entities. I am the person who gives benefit to all living entities by instruction about bhakti through the medium of my devotees.
out of my mercy, I am the object of worship for the devotees. So Suridham Sarvabhutanam refers to devotees. Because that is how Krishna reciprocates with devotees as Surit, friend. Of course, he reciprocates with all living entities, but specifically the devotees. So in this way, all the types of yogis have been referred to in this verse. Karma yogis, Jnana yogis, Ashtanga yogis, Bhakti yogis. One cannot attain realization of me who am beyond the modes by sattva guna jnana. I have said that I am attainable only by bhakti, bhaktayam ekya grahya. In the same way, the yogis only by bhakti, which is beyond the modes, by realizing me as Paramatma, Gyatva Mam, the object of his worship attain liberation. So ultimately, therefore, all the yogis require some amount of bhakti. सबको कुछ न कुछ भक्ति चाहिए. भक्ति के बिना किसी को भी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है. क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, अगर निर्विशेष ब्रह्म हो, वो भी भौतिक चीज नहीं है. निर्विशेष ब्रह्म क्या है? वो भगवान की कांति है. तो इसलिए वो भी आध्यात्मिक है, पूरी तरह से आध्यात्मिक है. परमात्मा तो भगवान का ही अंश है. तो इसलिए ये सब आध्यात्मिक है. तो आध्यात्मिक चीज प्राप्त करने के लिए केवल भौतिक चीज से कोई आध्यात्मिक चीज को प्राप्त नहीं कर सकता है, भौतिक प्रोसेस से. तो इसलिए भक्ति की आवश्यकता है, कुछ न कुछ भक्ति की आवश्यकता है. भक्ति के बिना किसी को भी परफेक्शन नहीं मिलेगा. So that is what he is saying. So ultimately the object of the worship is the Supreme Lord ultimately. And then the Shantim refers to liberation. This chapter explains that the Jnanis and the Yogis by Nishkam Karma Yoga attain liberation after realizing both Atma and Paramatma. Thus ends the commentary on the 5th chapter of the Gita for the joy of the devotees through the mercy of the Acharyas. ठीक है, प्रभुपाद जी का एक लेक्चर पढ़िए. Shuhit, he wants how you shall be happy. In Sanskrit, for different kind of friends, there are different names. Just like one friend is called Bandhu, one is called Mitra, one friend is called Shuhrit. There are differences, therefore there are different words. Just like in English language, there is only one word friend. But in Sanskrit, because it is perfect language, friend, what kind of friend? So Krishna says, I am Suhidram Sarvabhutanam. Shuhit, he wants how you shall be happy. Mitra, social friendship. Bandhu, official friendship. But Suhit means one who actually desires good of his friend, sincere friend, which you describe in English. So Krishna is Suhit, he always expecting my good, how I shall be good, therefore he is conversing me, please you surrender unto me. So that is mean of Surit, very intimate friend, well-wisher. Jai Shri Prabhupada ki jai. Okay, so that's the lesson Bhaktivinoda purports to the 5th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of Karma Yoga, action and Krishna consciousness. So you can see Krishna is presenting everything very systematically. तो थर्ड चैप्टर में भगवान ने कर्मकांड से शुरू किया ना. तो वहाँ 10 to 16 वो पूरा सेक्शन जो है 10 to 16 वो पूरा कर्मकांड का है. और फिर धीरे धीरे वहाँ से कर्म योग, निष्काम कर्म योग, और फिर ज्ञान योग, 4th चैप्टर 5th चैप्टर. तो भगवान एकदम सिस्टमैटिकली. और फिर अभी नेक्स्ट चैप्टर अष्टांग योग, और फिर 7 to 12 भक्ति योग. तो इस प्रकार भगवान एकदम सिस्टमैटिकली आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, हरे कृष्ण.